your mentor Yogita Dhami. So this is the space for class 6 to 8 students. Here in this journey, we are going to study all about the sciences with lots of fun, experiment and activities. Okay, right now we are going to cover up the second term syllabus for class 6 to 8 students. And in this journey today, we're going to start the chapter reproduction in plants for class 7th. And let's get started and see what all we have to study here. In class 6th, we have already studied about the characteristics of living organism. पढ़ा था ना वहां पर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो सब में दिखाई देते हैं, वेदर इट इज अ प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी में वो दिखाई देते हैं. क्या होते हैं वो? रेस्पिरेशन, मूवमेंट, स्टिमुलाई, पढ़ा था, न्यूट्रिशन. उसी में रिप्रोडक्शन भी एक पार्ट था. रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है ना? व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? Reproduction, re means again and again. Production means producing. So when any individual or when any organism can reproduce its own kind, that process is known as reproduction. Now why it is important? Because अगर नए individual नहीं produce होंगे तो क्या होगा? जो पुराने हैं वो एक दिन तो मरेंगे. Everyone will die one day. So all the species will extinct from this world. Yes or no? So that's why reproduction is important for the continuation of the species. Just have a look here. So what is reproduction? All living organism is having this characteristics in which they can produce their own kind. Yes or no? And this is essential for continuation of species. Continuation of species. Got it? Now how you will define it? So for defining the production of new individual. Now new individual in science it is also known as offspring. क्या बोलते हैं इसको? Offspring. तो production of new individual or you can write production of offspring. Again there is one more definition, the production of own kind. Anything you can write, everything is correct. So the production of new individual or offspring or own kind from the parents is called reproduction. Now, let's look at the type of reproduction. There are basically two types of reproduction. What are those? Asexual reproduction and sexual reproduction. Let's find out the difference. These are very easy ones. Quickly, have a look. The first one, in asexual reproduction, only one parent is involved. Means only one parent itself can produce the new individuals. While in sexual reproduction, two parents or male and female cells are required. ठीक है? So here male and female cells means two parents are required. Here only single parent is involved in the process of reproduction. What is the second difference? Here the plant we are talking about, because we are talking about the plant reproduction. So that's why the new plant are produced without using seed. So for production of new plant we don't have to sow seed. हमें plant ऐसे ना soil में seeds डालने की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है? But in sexual reproduction we have to plant the seed in the soil. उसको proper हमें water, nutrients सब देना पड़ेगा. Clear? Now another difference. Here in this asexual type of reproduction, the vegetative part, this is the word, the vegetative part of the plants are involved in reproduction. Now what is the meaning of vegetative part? Vegetable खाते हैं ना हम vegetable खाते हैं, तो plant के जो भी part हम vegetable के टाइप फॉर्म में खा सकते हैं वो सारे vegetative part होते हैं. हम क्या क्या खा सकते हैं? हम root खाते हैं, stem खाते हैं, leaves we eat, isn't it? Buds we eat. So all the parts of the plant that we eat as a form of vegetable, that comes under vegetative part. Got it? So in this, vegetative parts of the plants are involved in reproduction. For example, root, stem, leaves, buds, etc. It is written here. Got it? Here the reproduction, in the sexual reproduction, here the reproduction is done only by the reproductive part of the plant. Very very important part. ये MCQ में आता है. Which part of the plant is known as reproductive part of the plant, or which part of the plant is considered as reproductive part of the plant? That is flower. So when the reproduction is done with the help of flower, then it comes under the sexual reproduction of the plant. Clear? Moving ahead. Next, what is the next difference? In this asexual reproduction, the formation of plant from the parent is very fast, while
in this the formation of new plant is very slow. Why? बेटा देखो, अगर आप सीड डालोगे तो सीड पहले जर्मिनेट होगा, isn't it? फिर वो सैपलिंग में कन्वर्ट होगा, सैपलिंग से फिर वो बड़ा प्लांट बनेगा, तब उसमें फ्लावर आएंगे, तब जाके उसमें ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेयर नो फ्लावर इज रिक्वायर्ड, तो जो भी आपका प्लांट ऑलरेडी ग्रो है उसी के किसी पार्ट में से न्यू प्लांट आना शुरू हो जाता है. गॉट इट? सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी क्विक प्रोसेस, एंड हियर दिस इज अ स्लो प्रोसेस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ स्लो प्रोसेस. लास्ट डिफरेंस, हियर द डॉटर सेल और द ऑफस्प्रिंग इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स. पहले तो ये डॉटर सेल क्या है, वाई, देखो ऑफस्प्रिंग तो मैंने बताया था. व्हाट इज ऑफस्प्रिंग? द न्यू इंडिविजुअल, द न्यू प्रोड्यूस्ड इंडिविजुअल इज कॉल्ड ऑफस्प्रिंग. उसको डॉटर सेल भी बोला जाता है. साइंस में जो नया न्यू ऑफस्प्रिंग होता है उसको हमेशा डॉटर सेल ही बोलते हैं, सन सेल कभी नहीं बोलते. वाई? बिकॉज इन दिस वर्ल्ड इट इज नोन दैट फीमेल्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द न्यू इंडिविजुअल, है ना. तो यहाँ पर कोई भी सेल अगर कोई भी न्यू प्लांट अगर बॉर्न हुआ है तो उससे नया प्लांट तो और बनेगा ही, तो इसीलिए उसको बाय डिफॉल्ट डॉटर सेल ही बोला जाता है. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस. सो हियर डॉटर सेल और ऑफस्प्रिंग इज आइडेंटिकल फॉर द पेरेंट प्लांट, टू द पेरेंट प्लांट. व्हाई? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेल एंड फीमेल टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. गॉट इट? तो जो नया प्लांट होगा वो किसी के भी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक ले सकता है, या तो मदर के, या तो फीमेल के, या तो मेल के. बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक सारे के सारे एक ही पेरेंट से तो आएंगे. So that's why it is identical. In asexual reproduction, the new plant is always identical to the parent plant. While in sexual reproduction, it shows some difference from the parent plants. Got it? So this was the difference between asexual and sexual reproduction. Now we have to cover up both the topic in detail for the plants. Clear? Now let's move ahead. We will move for the type of asexual reproduction in the plants. Take now, as I told you, in plants the main way of asexual reproduction is through the vegetative parts. Let's have a look here. The first one is called vegetative propagation. Propagation means उससे और फैलना, वेजिटेटिव पार्ट से और फैलना, मतलब नए प्लांट्स को बनाना, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. नाउ which part of the plant, which vegetative part of the plant is being used, is responsible for producing the new individual? Depending on that, it can be of these following types. See, vegetative propagation through roots, vegetative propagation by stem, leaves, buds, and artificial means. We will study them in detail. Clear? Other than these, there are some organisms which are unicellular, or you can say they are microorganisms. जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूजुअली सिंगल सेल वाले होते हैं, है ना. उनमें रूट, स्टेम, लीफ ये सब नहीं होता. तो ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जहां पर सिंगल सेल होता है और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं. तो वो कौन से टाइप होते हैं? दीज आर बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन. सो यहां से आगे जो ये तीन हैं, ये सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट दीज आर इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये प्लांट के बारे में नहीं हो रहा, जो बड़ा वाला प्लांट होता है हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं. बड़े वाले प्लांट की जो रिप्रोडक्शन है वो ये है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? ये तीन किस में आते हैं? यूनिसेल्युलर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यू कैन से, उनमें ये रिप्रोडक्शन देखा जाता है. ठीक है, वी विल कवर देम वन बाय वन इन डिटेल. सो लेट्स स्टार्ट विथ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फर्स्ट. ओके, सो व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? Vegetative propagation, as the name is suggesting, when vegetative part is involved in the reproduction. It is written here, as the name suggests, the type of reproduction that takes place with the help of vegetative part. आपको पहले ही मैंने बता दिया है वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब हम वन बाय वन सारे कवर अप करेंगे. ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सो प्लीज पे अटेंशन प्रॉपरली आफ्टर दिस. नाउ फर्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू रूट्स. ना ऐसे कौन से प्लांट हैं जो रूट से और नए प्लांट को जर्मिनेट कर सकते हैं, यानी एक प्लांट अपनी रूट से नए प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है? ऐसे कौन से प्लांट्स हैं? लेट्स हैव अ लुक. ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये देखा पहले कभी? व्हाट इज इट? दिस इज स्वीट पोटैटो. अभी सर्दियां आने वाली है, हम खाते हैं इसको बहुत, इजंट इट? तो स्वीट पोटैटो इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रूट. अच्छा, ऐसे रूट्स जिसको हम खा सकते हैं
उनको ट्यूबरस रूट बोला जाता है। ट्यूबरस रूट्स आर दोज रूट्स विच आर हैविंग फूड स्टोर्ड इन इट। ऐसी रूट जिसमें फूड स्टोर्ड होता है उनको ट्यूबरस रूट बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्यूबरस रूट। होता क्या है इसमें, लेट्स हैव अ लुक। सो द प्लांट्स हैविंग ट्यूबरस रूट्स, अभी मैंने बताया ट्यूबरस का मतलब द वन विच आर हैविंग स्टोर्ड फूड इन इट। द प्लांट्स हैविंग ट्यूबरस रूट पार्टिसिपेट इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक। ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है बीट रूट, ये स्वीट पोटैटो का ही है, ठीक। इसमें होता क्या है, इन ऑर्डर टू ग्रो न्यू प्लांट्स दीज ट्यूबरस रूट्स आर सोन इनटू द सॉइल, हम उस रूट को ही सॉइल में डाल देते हैं। एंड देयर आर बर्ड्स प्रेजेंट इन द फ्रूट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड। यहाँ पे देखो ये एक स्वीट पोटैटो है और स्वीट पोटैटो में ये देखो छोटे 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 बर्ड दिख रहे हैं, ये वाले, ये। तो अगर हम इनको कट करके ऐसे सॉइल में डाल देंगे तो यहीं से नया प्लांट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड दैट हैपेंस इन द फ्रॉम द रूट्स। और एग्जाम्पल क्या है स्वीट पोटैटो के अलावा, और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? सो स्वीट पोटैटो, कैरेट्स, बीट रूट्स, डेलिया, डेलिया इज अ फ्लावर, है ना। सो ये सारे के सारे शो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू रूट्स। क्लियर? मूविंग अहेड, नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू स्टेम। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि ऐसे कौन से प्लांट है जो स्टेम से न्यू प्लांट को जर्मिनेट करते हैं। नाउ इसमें दो कैटेगरी आती है, ठीक है। पहली कैटेगरी है स्टेम ट्यूबर्स। नाउ व्हाट आर स्टेम ट्यूबर्स? ट्यूबर्स मैंने अभी बताया था, व्हाट आर ट्यूबर्स, जिसको हम खा सकते हैं, जिसमें फूड स्टोर्ड होता है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था रूट ट्यूबर्स, जहां पे रूट में खाना स्टोर था। अभी यहाँ पे क्या है, स्टेम में खाना स्टोर है, ठीक है। सो स्टेम ट्यूबर्स। तो जस्ट लाइक ट्यूबरस रूट्स, सम प्लांट्स हैव ट्यूबरस स्टेम। कैन यू गिव मी वन एग्जांपल? पता है? आई थिंक पता होगा। व्हाट इज इट? दिस इज पोटैटो। पोटैटो इज अ स्टेम ट्यूबर, इजंट इट? तो पोटैटो में होता है ना, देखा है इस टाइप का, ये छोटे छोटे छोटे, इनको क्या बोलते हैं, जो ये यहाँ पे ये जो डिप्स हैं ये वाले, क्या बोलते हैं इनको? दीज आर कॉल्ड आई ऑफ द पोटैटो। और यही इन्हीं आई से क्या होता है, नया बड जर्मिनेट होता है, ठीक है। अगर कई दिनों तक आलू ऐसे रखा रह जाए, यानी बहुत पुराना आलू हो, तो इस तरीके के आपने पक्का इसमें बर्ड देखे होंगे, isn't it? So these are the places, अगर इनको हमको कट करके यहाँ पे इनको ऐसे कट कर दिया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में और इसको सॉइल में डिप कर देते हैं, तो क्या होता है, यहीं से नया प्लांट जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है, ठीक। सो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू स्टेम ट्यूबर्स। क्लियर? इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है स्टेम वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू स्टेम का? थ्रू रनर्स। ये देखो रनर्स क्या होते हैं, इस टाइप के प्लांट्स होते हैं। यहां पर क्या था, यहां पर हमें स्टेम को काट के, जो स्टेम ट्यूबर था उसको कट करके सॉइल के अंदर डालना था। इस जगह पे क्या होता है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना। यहां पर अगर प्लांट की जो स्टेम है, जो एरियल स्टेम है, हवा में जो स्टेम है, अगर वो कहीं पर सॉइल में टच हो गई और उसका बड पार्ट अगर टच हो गया, तो वहीं से नया प्लांट जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है, isn't it? Let's have a look here. What is it? Some plant grows along the ground and contain modified stem called runners. So these stems जो ये ऐसे करके आगे को भाग रही हैं और स्टेम सॉइल में जा रही हैं, these are runners. Got it? These runner contains buds. इनमें क्या होता है, छोटे छोटे हर जगह नोड और हर नोड पे बर्ड्स होते हैं, और जैसे ही वो बर्ड प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उसको मिलेगा और फेवरेबल कंडीशन उसको मिलेगी, वहीं से नया प्लांट जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। Now what are the examples? Strawberries. Let's have a look here. I have got some examples for you. ये कुछ जाना पहचाना है, दिस इज मिंट, पुदीना, ठीक है। तो पुदीना में देखो ये पूरा ये रनर है, ये रनर से यहाँ पे कितने सारे जितने भी नोड्स हैं वहां पे कुछ बर्ड्स होंगे और यहाँ पर रूट आनी शुरू हो गई, सो नए प्लांट जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। पुदीना बहुत जल्दी फैल जाता है बोलते हैं, वाई? बिकॉज इन्हीं रनर की वजह से, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, दिस इज स्ट्रॉबेरी। दिस इज स्ट्रॉबेरी प्लांट, अगेन सी दिस इज द रनर है, रनर से फिर नया प्लांट शुरू हो गया, अगेन दिस इज द रनर, यहाँ से नया प्लांट शुरू हो गया। द बेस्ट एग्जाम्पल इज ग्रास। हमारे आसपास जितनी भी घास होती है, दैट इज ऑल द एग्जाम्पल ऑफ रनर्स। क्लियर? सो I hope you have understood the vegetative propagation through stem. Clear? Now moving ahead, vegetative propagation by leaves. Now, there are some special type of plants जिनकी leaves में भी buds आ सकते हैं। कुछ leaves के margin, जो ये margin है ना, ये वाला, इसको leaf blade भी बोलते हैं, isn't it? तो इसके margin पर छोटे छोटे, हर margin पे डिप पे एक bud होता है, और वही bud से
नया प्लांट आना शुरू हो जाता है. एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइलम. व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लांट? ब्रायोफाइलम. सो when the new plant germinate from the leaf, this is called vegetative propagation through leaf. Examples: bryophyllum. Other than bryophyllum, begonia. Begonia is one more example. Let's have a look here. The real pictures are here. See, this is the example of bryophyllum. यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, लीफ ब्लेड के हर डिप पे यहाँ पर छोटे 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 बर्ड्स हैं और वहीं से नए प्लांट आने शुरू हो गए. सो दिस इज ब्रायोफाइलम. दिस इज बेगोनिया. बेगोनिया में क्या होता है, लीफ ब्लेड से नहीं आ रहा बर्ड, यहाँ पर जो ये पिटियोल है ना, जो स्टॉक, लीफ स्टॉक बोलते हैं जिसको, पिटियोल, वहां से इस जगह से नए बर्ड आने शुरू होते हैं, यानी रूट जर्मिनेट होना शुरू हो जाती हैं, एंड देन यू गेट ए न्यू प्लांट. इसी के पिक्चर है ये, ठीक है. सो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू लीव्स. गॉट इट? मूविंग अहेड. नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग फॉर आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, जहां पर अपने आप प्लांट नहीं जर्मिनेट करता, हम वहां पर मैन यानी ह्यूमन इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड. गॉट इट? व्हाट इट इज? ऐसे कुछ देखा देखा लग रहा है ये पिक्चर्स. क्या कर रहा है यहाँ पे? फर्स्ट वाले में क्या कर रहे हैं, ये प्लांट को यहाँ से कट करा, दूसरी जगह लगाया और उसी में यहाँ पे रूट्स आनी शुरू हो गई. यहाँ पे दूसरा वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे रूट को कट कर दिया, रूट को लगाया, वहीं से नया प्लांट आना शुरू हो गया. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कटिंग. यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पे हमने उसको काटा और फेवरेबल कंडीशन में उसको लगा दिया प्लांट को, उस पार्ट ऑफ द प्लांट को, ठीक है, सो दैट द न्यू प्लांट कैन ग्रो. द अनदर वन, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोई एक प्लांट ऑलरेडी सॉइल में है, उसका जो स्टॉक है, और यहाँ से हमने कोई दूसरे प्लांट का पार्ट काट के वहां पर उसको जोड़ के बांध दिया है. दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग. क्लियर? लेट्स हैव अ लुक. कटिंग. द फर्स्ट मेथड इज कटिंग. It is a method in which the cutting from any one plant is taken out and it is sown in the soil. ठीक? कौन सा, कहाँ करते हैं ऐसा? कभी करा है ऐसा? Yes, the best example is rose. Have a look. ये देखो, ये रोज की कुछ कटिंग है, हर नोड पे एक बड आया हुआ है, देखो ये बड, everywhere it is a bud. See, vegetative propagation can take place through root, stem, leaf, bud. Bud is also one of the example. तो bud को हम अलग से नहीं करेंगे, सिंपल है. whenever the plant can grow through the bud of the plant which is present at the nodes. कैसे होता है ये रोज इज द एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ कटिंग. तो कटिंग ही वो बडिंग में काउंट हो सकता है, ठीक है. तो करेंगे क्या, जैसे हमने कटिंग लिया और उसको जब हम सो करते हैं सॉइल में, तो इस तरीके से इसमें रूट्स जर्मिनेट बन जाते हैं. तो नाउ दीज ऑल आर न्यू प्लांट्स. क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू द ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, लेट्स से हमारे पास एक बहुत हेल्दी प्लांट है, लेकिन उसका फ्रूट अच्छा नहीं है, बहुत हमारा डिजायरेबल जो है, जैसा हमको फ्रूट चाहिए वैसा नहीं आ रहा उसमें, या फ्लावर नहीं आ रहे, ठीक है, बट वो प्लांट बहुत हेल्दी है. सो व्हाट वी डू, वी कट ऑफ द प्लांट, द टॉप पार्ट, वी कीप द रूट्स, एंड जिस प्लांट का फ्रूट या फ्लावर जैसा हमको चाहिए, वहां से हम एक कटिंग लेके उसके ऊपर ग्राफ्ट कर देते हैं. गॉट इट? वी जस्ट अटैच देम एंड बाइंड देम. सो व्हाट हैपन, डिजायर्ड जो हमको प्लांट, जो भी जैसे भी डिजायर्ड फ्लावर या फ्रूट चाहिए, वो हमें मिलता है, एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ अ हेल्दी प्लांट. गॉट इट? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग. क्लियर? सो दीज आर ऑल द मीन्स ऑफ asexual reproduction by vegetative propagation. So vegetative propagation is done with this. Clear? Now what are the advantages of vegetative propagation? We'll cover it up. क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जाम्पल? फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जल्दी होता है. ऑल दिस हैपन्स वेरी क्विक. सी, इफ यू आर हैविंग अ लॉन, ठीक है, और वहां पे बिल्कुल अभी बंजर है, कोई ग्रास नहीं है, एंड इफ यू वांट टू ग्रो द ग्रास, व्हाट हैपेंस, यू जस्ट पुट सम पैचेस ऑफ द ग्रास इन दैट लॉन, और कुछ विद इन अ मंथ पूरा लॉन भर जाता है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू स्टेम, isn't it? तो अगर हम उसमें सीड के थ्रू करते तो वो पूरा 1 ईयर लेता उसको कवर अप करने में. तो यहाँ पर प्रोसेस क्या होती है, बहुत जल्दी होती है, ठीक है. सेकेंड, द प्लांट दैट रिप्रोड्यूस विद वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैव फ्रूट्स एंड फ्लावर अहेड ऑफ टाइम. सी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाले प्लांट्स में भी फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आते हैं, ठीक है. सपोज आपने पोटैटो लगाया, तो पोटैटो विद इन 2-3 मंथ्स आपको पूरा नया पोटैटो का पूरा एक वो मिल जाएगा, क्रॉप मिल जाएगी. गॉट इट? तो
दिस इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस एंड यू गेट द फ्रूट एंड फ्लावर अहेड ऑफ टाइम, मतलब जल्दी मिल जाता है बेसिकली, इट इज द फास्ट प्रोसेस. नेक्स्ट, द प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड एग्जैक्टली सेम कैरेक्टरिस्टिक दैट ऑफ देयर पेरेंट्स. मीन्स अगर आपके पास कोई एक हेल्दी प्लांट्स है तो उससे जो नया प्लांट ग्रो होगा वो भी मोस्टली उसी के कैरेक्टरिस्टिक के साथ ग्रो होगा, isn't it? So you will be expecting a good new plant also. Clear? So now with this we are done with vegetative propagation. So now let's start the asexual reproduction that is possible in microorganisms. ठीक है? Now the first process is budding. What is budding? Budding is a mode of asexual reproduction that takes place in yeast. Yeast is a type of fungi. See, yeast is a type of fungi. It is not a plant at all. प्लांट नहीं होता वो फंजाई होता है. फंजाई एक अलग कैटेगरी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. ठीक है, ओके. नाउ ईस्ट का भी देखा है, पक्का देखा होगा. अगर मम्मा घर में ब्रेड बेक करती है, कभी डोनट्स बनाए हैं, तो ईस्ट पक्का घर पे होगा. कैसे होते हैं? ईस्ट के छोटे 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 स्पोर्स होते हैं. ठीक है, उसको जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है ना, लाइक फेवरेबल कंडीशन मीन्स उसको बहुत ह्यूमिड और वार्म कंडीशन चाहिए होती है. ठीक है, विद सम शुगर से वो जल्दी ग्रो करते हैं. तो अगर कभी भी ईस्ट अगर 1 स्पून आप शुगर सॉल्यूशन में डालेंगे तो विद इन 10-15 मिनट्स वो बिल्कुल ट्रिपल हो जाते हैं अपने वॉल्यूम के. वो इतनी जल्दी ग्रो करते हैं. ठीक है, सो नाउ हाउ दे ग्रो, जस्ट हैव अ लुक हियर. ईस्ट इज अ फंजाई नॉट अ प्लांट, इट इज रिटन हियर. सी दीज आर द ईस्ट. ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है. अगर आप ईस्ट को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा. सी ऑल थिंग्स आर अटैच्ड विद ईच अदर. चेन टाइप की दिख रही है ये. नाउ ये कैसे बनती है, लेट्स हैव अ लुक हियर. Let's say this is the yeast cell, single cell of yeast. yeast के अंदर एक न्यूक्लियस होता है सिर्फ और एक सिंगल सेल्ड होता है ये. इट इज अ यूनिसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म. ठीक, सो लेट्स से दिस इज द पेरेंट yeast cell. So when it will start dividing, यानी when it will undergo asexual reproduction, what will happen? The elongation of nucleus and the cytoplasm, ये जो बाहर का एरिया है ना, ये वाला सेल, लेट्स से सेल अभी, तो सेल और न्यूक्लियस का इलोंगेशन शुरू होता है. ठीक, और इस इलोंगेशन के बाद पहले डिवीजन कहां पे होता है? न्यूक्लियस में. हैव अ लुक. पहले न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है एंड उसके बाद ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जो बाहर का एरिया है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू होता है. यहां से एक नया बड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा. ठीक, सो व्हाट डिवाइड्स फर्स्ट? न्यूक्लियस एंड देन इट फॉलोज विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. एंड दे लेटर ऑन क्या होता है, ये देखो, एक वर्ड बना, उसके बाद दूसरा वर्ड बना होगा, फिर तीसरा वर्ड बना होगा. सो दिस वे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बड चेन. और इवेंचुअली ये यहां से सारे बड आपस में अलग अलग हो जाएंगे एंड देन दे विल फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल. गॉट इट? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ asexual reproduction in yeast and this process is known as budding. Why it is called budding? Because में छोटे छोटे bud means small new individual. Yes or no? तो यहाँ पेरेंट प्लांट से एक छोटा सा न्यू इंडिविजुअल उसी की बॉडी पर अटैच हो रखे, ग्रो हो रहा है. ठीक है, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज बडिंग. सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक हियर. एज द ईस्ट फाइंड्स द फेवरेबल कंडीशन, मैंने क्या बताया था? सबसे पहले फेवरेबल कंडीशन चाहिए. ऐसे नहीं कि अपने आप ही ग्रो हो जाता है. अगर आप मार्केट से ईस्ट लेके आएंगे एक डब्बे में, तो वो ऐसा नहीं कि आज आप लेके आए और कल वो डबल हो जाएगा. नो, इट विल नॉट ग्रो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. इट कैन ग्रो ओनली व्हेन इट विल गेट द फेवरेबल कंडीशंस. So the yeast, when the yeast find favorable condition, a small bulb-like projection produced from the parent body. First, the nucleus division takes place, followed by the division of cytoplasm. पहले क्या divide होता है? Nucleus. Then followed by cytoplasm. The bud grows gradually and get detached from the parent's body, and then it further produces new individual. Clear? So this was all about the budding. Moving ahead, next is fragmentation. Fragment means pieces, जहां पे छोटे छोटे pieces हो जाते हैं. ठीक है, कहां होते हैं, किस में होते हैं? Let's have a look. Okay, have you ever seen this kind of picture in the pond water or stagnant water? जहां पे रुका हुआ पानी होता है ना, गंदा पानी बेसिकली, वहां पे इस टाइप का आपने पक्का देखा होगा. These are quite slippery and slimy. इसको वाटर सिल्क भी बोला जाता है. वाटर सिल्क कैसा होता है? बहुत स्मूथ और स्लिपरी होता है ना, इसलिए इसको वाटर सिल्क भी बोलते हैं. इसका माइक्रोस्कोपिक पिक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है. कैसा दिख रहा है ये? जैसे स्प्रिंग होता है, स्पाइरल. गॉट इट? इट्स नेम इज स्पाइरोगायरा. Spirogyra is a type of algae. Algae is again a different category of microorganism. Now let's have a look here. What happened in Spirogyra?
एल्गे लाइक स्पाइरोगायरा जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ये देखो, ये एक स्पाइरोगायरा का स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड अपने आप छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये कट जाता है, मतलब फ्रेगमेंट बन गए इसके, ठीक। एज सुन एज द एल्गे फाइंड इनफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, एल्गे हमेशा वाटर बॉडीज में ही ग्रो होता है, उसके आसपास ग्रो होता है, उसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। सो एज सुन एज द एल्गे फाइंड इनफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट, इट्स फ्रेगमेंट starts growing into the new individual, and then they can produce again the new individual with the help of fragmentation. Clear? So fragmentation is the process where the individual divides itself into the new offsprings. ठीक? And this takes place in Spirogyra. Spirogyra is a algae. Remember this. Now last, that is the type of asexual reproduction, that is spore formation. ठीक? It again take place in the microorganism. ये पिक्चर कभी देखी है पहले? पक्का देखी होगी. What is this? This is bread mold. ये ब्रेड है और ब्रेड में ये मोल्ड लगा हुआ है. ब्रेड मोल्ड होता क्या है, हम इसको क्या बोलते हैं? अगर किसी को ब्रेड मोल्ड नाम नहीं पता, को बोलेंगे ओहो फंगस लग गया, बोलते हैं ना, फंगस लग गया. सो ब्रेड मोल्ड इज अ टाइप ऑफ फंगस ओनली. ठीक है, हमने इससे पहले एक और कौन सा फंगस पढ़ा है? कौन सा फंगस पढ़ा? ईस्ट. यस. सो ईस्ट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फंजाई एंड ब्रेड मोल्ड इज ऑल्सो टाइप ऑफ फंजाई. ओके, अब अगर ये ब्रेड मोल्ड को हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है. ये देखो, ये ब्रेड है और यहाँ पर अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है. क्या है ये? इट्स अ नेटवर्क ऑफ दिस फंजाई. व्हाट हैपेंस इन दिस? यहाँ से एक ये फंजाई ग्रो होना शुरू हुआ. क्या इनके नाम इज गिवन इन एनसीईआरटी, सो इट माइट कम इन एग्जामिनेशन फॉर लेबलिंग, सो प्लीज फोकस. इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड हाइफे. What it is known as hyphae. ये जो रूट टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको बोलते हैं हाइफे. हाइफे से जो ये एक एक्सटेंडेड स्टेम निकल के जा रही है इसको बोलते हैं स्टोलोन. व्हाट इट इज नोन एज स्टोलोन. स्टोलोन के बाद यहां से जो ये ग्रो हो रहे हैं, मतलब जो ऊपर का प्लांट टाइप का ग्रो हो रहा है, दीज आर नॉट प्लांट्स, दीज आर नॉट प्लांट एट ऑल, दीज आर फंजाई. व्हाई आई एम टेलिंग यू इन दिस वे? सो दैट यू कैन रिमेंबर. ठीक है, ये रूट की तरह रिजेंबल कर रहा है हाइफे, isn't it? ये एक ऊपर वाली स्टेम की तरह रिजेंबल कर रहा है स्टोलोन, ये ऊपर जो प्लांट की तरह रिजेंबल कर रहे हैं सिर्फ. ठीक है, ओके. सो व्हाट आर दीज? ये जो ये सैक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, बैग टाइप ऑफ, ऐसा लगता है जो कोई थैला होता है ना, इसमें हम सामान रख लेते हैं, तो सैक, इट इज कॉल्ड सैक. सो सैक इज नोन एज स्पोरेंजियम. व्हाट इट इज नोन एज? स्पोरेंजियम. द सैक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ब्रेड मोल्ड is known as sporangium. And what it contains? It contains spores. देखो, sporangium जब फूट जाता है, when it bursts, then spores comes and they spread in the surrounding. ठीक है. Now there are some important points that we need to notice जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है. क्या है वो? ये देखो, some plants contain spores that floats in the air and cause asexual reproduction. ठीक है, स्पोर सिर्फ ब्रेड मोल्ड में नहीं होते, कहीं और भी हो सकते हैं. ठीक, हम फिलहाल यहाँ पे स्पोर से कैसे जर्मिनेशन होता है वो बात कर रहे हैं. तो स्पोर फॉर्मेशन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट्स व्हाई इट इज रिटन. नाउ व्हाट आर स्पोर्स? ये जो हमने ये पढ़ लिया, यहाँ पे हाइफे है, स्टोलोन है, स्पोरेंजियम है. स्पोरेंजियम के अंदर क्या है? स्पोर्स. ना स्पोर्स हमारे सामने, सपोज स्पोरेंजियम बर्स्ट हुआ और स्पोर्स पूरे हमारे सराउंडिंग में आ गए, तो क्या वो जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं? नो, दे डोंट जर्मिनेट इमीडिएटली. They germinate when they get the favorable condition. और ये जो स्पोर हैं वो easily ऐसे डैमेज नहीं होते हैं. Why? Spores are having some hard protective cover which protects it from the unfavorable environmental condition like temperature and humidity. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इन सब से बचाने के लिए स्पोर के चारों तरफ एक बहुत हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है. ठीक है, एंड बिकॉज दे आर वेरी लाइट, बहुत हल्के होते हैं, सो दैट्स व्हाई दे कैन ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. ठीक है, जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं वो जाके जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं. नाउ सी, देखो, हम कभी अगर सपोज एक स्पॉइल्ड फूड है हमने टेबल पे रखा हुआ है, अब हम कहीं से वहां पर जाके स्पोर्स तो लेके नहीं आए हैं, वी डोंट गेट द स्पोर्स ऑन आवर ओन. लेकिन अगर उसको हम रखेंगे सपोज 12 आवर्स और 24 आवर्स के लिए, अपने आप वहां पर दिस फंगस और ब्रेड मोल्ड स्टार्ट्स ग्रोइंग. यस और नो? तो वो स्पोर्स कहाँ से आए? दो स्पोर्स वर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एयर, बट
They were not growing because there was no favorable condition. As soon as they got the favorable condition, they starts growing. Clear? So ये question यहाँ से आता है कि how spores are protected from the harsh condition. They are having a protective covering on their body which protect from environmental condition like temperature and humidity. ठीक है? So this was all about the asexual reproduction in the plants. Oh yes, one more. This spore formation, other than bread mold, it can take place in ferns also. Ferns देखें, ये ferns के लीफ, ferns के पीछे से कुछ ब्राउन ब्राउन डॉट 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 से होते हैं ना, ठीक है? अगर उनको ध्यान से देखेंगे तो वहां पे ऐसे पाउडर टाइप का होता है वो, उस पाउडर में इस टाइप के स्पोर्स होते हैं, और वो स्पोर्स, ये देखो ये स्पोर्स हैं फर्न्स के. सो फ्रॉम दिस द स्पोर फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन कैन टेक प्लेस. ठीक है? सो इट टेक्स प्लेस इन फर्न्स ऑल्सो. ये इंपॉर्टेंट है यहां पर. नाउ what all we have covered in asexual reproduction? We know that there are 4 types of asexual reproduction. The vegetative propagation takes place in the plants, the big plants where there are all vegetative parts present. It takes place depending on which part of the plant is involved: root, stem, leaves, buds, artificial means, and उनके example लिखे हुए हैं. So this is a full chart. You can, if you want, you can take a screenshot. Now after this we are moving for sexual reproduction in plants. What is it? The sexual reproduction in plants, as we have already discussed, what is the meaning of sexual reproduction? Where 2 parents are involved, or in plants we will say the male and female cells are involved. It takes place from the reproductive part of the plant. Now what is the reproductive part of the plant? पहले ही मैंने बताया हुआ है. It is a flower. ठीक है? So flower diagram is very very important, और आपको within a minute flower diagram draw करना आना चाहिए. Let's try and draw with me. Pick up a pencil and a paper in front of you and draw with me. You will be able to remember it very easily. Let's have a look. What I am drawing, these are the petals. ठीक है? Let me change the pen. Okay. What is this? This is the pedicle, जहां से sepal इसमें attach होते हैं. Now moving ahead, the next one. Here what I am drawing, if you know, I think in 6th class you have already studied its name. At least name you know it. What it is? This is. अगर पता है तो कमेंट करके बताओ. Okay. That's it. This is the part of the flower. This is the flower diagram. ठीक है? Now we will go for the labeling. Now for labeling, let's go one by one. First labeling is this. Second, that you should know. Third is this. Okay, इसको second कर लेते हैं. ये second, this is third, and this is fourth. ठीक है? What is this? This is sepal. The red one, the red part is petal. What is this? ये जो ये यहाँ पे ये पर्पल कलर का स्टॉक दिख रहा है, ये क्या है? This is, okay, just a minute. This is the filament, and here this is the anther, and these together are known as stamen. What it is known as? Stamen. And stamen is the male reproductive part of the flower. ठीक है? इसमें देखो उसके नाम में ही men आ रहा है. ठीक है? Remember in this way. Don't ever get confused. Coming ahead, this side. ये देखो. What is this? This can be divided into 4 parts. यहाँ पे 4th part अभी बनाया नहीं है. Let me make it first. What is the 4th part inside? यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा है? What is this? This is ovary. ठीक है? So let me label it. The first top part is called stigma. This is style. This is ovary. And the inside ovule. And all these together, what are these known as? Pistil. Okay, why it is not working? Pistil. So these all together are known as pistil. So this was all about the diagram of the flower.
ठीक है. Now coming to the parts of the flower, means the reproductive parts of the flower one by one quickly. The first one is, this is stamen. This is stamen. Now stamen is divided into two parts, the top part and the lower part. Lower part is just like a thread, एक धागे की तरह है ना, इसलिए इसको फिलामेंट बोलते हैं. ठीक है. ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एंथर. डोंट गेट कंफ्यूज, बच्चे कई बार इसकी लेबलिंग में स्टेमन लिख के आ जाते हैं. नो, stamen is the full reproductive part, male reproductive part of the plant, but the top part is only called anther and the lower stalk is known as filament. ठीक है. क्या है ये? The male, यही जो मैंने आपको बताया वही सब इसमें लिखा हुआ है. Now one very important point, this anther, ये जो anther है ना, इसके अंदर छोटे 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 इस तरह के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम क्या? pollen grains. Now coming to the female reproductive part, this is the structure of female reproductive part. मैंने पहले बताया था, there are 4 parts in the pistil. Its name is pistil और carpel भी बोलते हैं. It is also known as carpel. ठीक है. What is this? The first part is called stigma. Why it is? अब कैसे याद करेंगे stigma? ये देखो, ये जो pollen grains है ना, ये यहाँ से सबसे पहले stigma पे ही आते हैं और stick हो जाते हैं. They get stick to the stigma. So that's why stigma. वहां पे स्टिक होता है pollen grain आगे. ठीक है. So stigma, this is style. Clear? Now the swollen part, the swollen bottom part is known as ovary, और ovary के अंदर क्या होते हैं? Ovules. Clear? So these are the main 4 part of the female reproductive part of the plant. Its name is pistil. The same thing written here. The female reproductive part of the plant is called pistil or carpel. And these are the 4, stigma, style, ovary, और ovary के अंदर क्या है? यहाँ पर ovules. Got it? So these are the 4 parts of the female reproductive part. Clear? Moving ahead. Next. Now, अब फ्लावर के अंदर हमने क्या बताया? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. ठीक है. बट क्या सारे फ्लावर में होता है? नो. लेट्स हैव अ लुक. There are 2 types of flower. The first one is called complete flower and the another one is called incomplete flower. नाम से ही पता पड़ रहा होगा. Complete flower कौन सा होगा? जिसके अंदर दोनों ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, यानी जिसमें कि स्टेमन एंड पिस्टल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. कहाँ होते हैं ये लिली, रोज, ब्रिंजल, हिबिस्कस, पिट्यूनिया, मस्टर्ड, these are the examples and these are the examples which are given in NCERT. तो आपको याद करने पड़ेंगे, ये MCQ में आ जाते हैं. ठीक है. यहां पर से लिली, रोज और आपको हिबिस्कस दे देंगे और यहां से एक उठा के दे देंगे. ठीक. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर आ जाएगा. सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर आ जाएगा. ठीक. तो इस तरह से एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन आता है, सो यू हैव टू रिमेंबर इट. ठीक. What are incomplete flowers? These are the flowers which will contain either the stamen or pistil. दोनों एक साथ एक फ्लावर में नहीं होंगे. ठीक. Now let's have a look here examples. ये देखो क्या है? हिबिस्कस. यहाँ पे हिबिस्कस के फ्लावर में देखो, यहाँ पे ये क्या है? दिस इज पिस्टल. और ये क्या है? येलो येलो वाले, दीज आर ऑल स्टेमन्स. सो बोथ आर प्रेजेंट इन वन फ्लावर. सिमिलरली यहाँ पे देखो, दिस इज पिस्टल एंड दिस इज स्टेमन. Isn't it? So both are present in one flower. So these both are complete flowers. Next, these are the flowers of papaya. ये देखो, एक पपाया के फ्लावर में ये क्या है? सारा स्टेमन. ये सारे के सारे स्टेमन है. There is no pistil. And the another flower, this is having only pistil. Got it? So these are the examples of incomplete flower or unisexual flower. Clear? So complete flower and incomplete flower का difference with examples you have to learn. Moving ahead, what is the meaning of pollination? Now, आपको फ्लावर पता पड़ गया, फ्लावर के मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पता पड़ गए, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपको पता है कि एंथर में pollen grains होते हैं. ठीक है. Now pollen grains travel from the anther to the female reproductive part, that is stigma. ठीक है. Now this process is called pollination. Pollen grain का traveling from anther to stigma is called pollination. Have a look here. The process of transfer of pollen grains from anther to stigma is known as pollination. Got it? The male gamete. What is the male gamete? Male gamete is present inside the pollen grain.
ठीक है, द मेल गैमेट रीचेस टू द फीमेल गैमेट बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। ये हम देखेंगे अभी आगे जाके कैसे होता है। ठीक, नाउ व्हाट आर पॉलन ग्रेन्स? पॉलन ग्रेन्स होते कैसे हैं, कैसे ट्रैवल करते हैं? जस्ट हैव अ लुक हियर। Pollen grains have tough covering which allow them to survive in different climate condition। देखो जितने भी ऐसे स्पोर्स, हमने भी स्पोर फॉर्मेशन में भी यही पढ़ा था, है ना। तो जो भी ऐसी चीजें हैं जो अपने पेरेंट प्लांट से हटके आपस एयर में ट्रैवल करके अपने आप कहीं और जा रहे हैं, उसमें यूजुअली क्या होता है, बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसी हार्ड कवरिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट कर लेती है। ठीक है, सो सिमिलरली पॉलन्स आर हैविंग सम टफ कवरिंग विच अलाउ देम टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशन। ठीक है, ड्यू टू देयर लाइट वेट, विंड, वाटर often carry them from one place to another। हवा चलेगी, सारे pollen grain उड़ जाएंगे and they will scatter around, isn't it? होता कैसे है, कहाँ pollen grains होते हैं? Have a look here, this is hibiscus flower और यहाँ पर क्या है, ये सारा एंथर है। तो एंथर के अंदर आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस तरीके के ये pollen grains होते हैं। देखो pollen grains कैसे दिख रहे हैं, आउटर कवरिंग दिख रही है इसकी हार्ड सी। सो दीज ऑल आर pollen grains। ठीक है, नाउ pollen grains विंड और वाटर के अलावा इंसेक्ट के थ्रू भी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा सकते हैं। जैसे हनी भी है, हनी भी एक फ्लावर में बैठती है, इजंट इट? जब व्हेन इट विल सिट ऑन वन फ्लावर तो उसके पाँव में थोड़े बहुत पॉलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं। वो वहां से जाके दूसरे फ्लावर में जाएगी तो हो सकता है स्टिग्मा पे बैठे और वहां से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, सो पॉलन ग्रेन कैन ट्रांसफर थ्रू विंड, वाटर और विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स। क्लियर? नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द टाइप ऑफ पॉलिनेशन। The pollen grains which are traveling from anther, where they are traveling, to which flower they are traveling. Depending on that, pollination can be of two types. The first one is called self-pollination, the another one is called cross-pollination. ठीक है, कैसे होता है? Let's have a look here. Let's say in this first picture, this is a complete flower. तो यहाँ पर क्या होगा? When the pollens transfer from anther to When the pollens transfer from anther to stigma of same flower, यहां पे क्या हुआ देखो, एंथर से पॉलन्स गए और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चले गए। दूसरा क्या है कंडीशन? When the pollens transfer from anther to stigma of different flower but same plant। फिर अगेन वर्ड क्या आ गया? सेम। तो जहां पर डेफिनेशन में सेम वर्ड है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। जब तक सेम प्लांट में सब कुछ हो रहा है, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। रिपीटिंग अगेन, फर्स्ट कंडीशन, इफ द पॉलन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर इन सेम प्लांट, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? नाउ व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? व्हेन द पॉलन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of different flower in different plant। दो बार different आ गया। From pollen transfer from the anther to stigma of different flower in different plant, that is called cross pollination। Have a look here. When the pollen grains land on the stigma of same flower or another flower of same plant, self pollination। When the pollen grains land on the stigma of different flower, whether of similar kind or different kind, similar kind or different kind मतलब कोई भी दूसरे टाइप का प्लांट भी तो हो सकता है ना। जरूरी थोड़ी कि पपाया के पॉलन ग्रेन को पता थोड़ी कि पपाया के ही स्टिग्मा पे जाना है। वो तो विंड जहां उसको लेके जाएगी वहां जा सकता है ना। तो वो किसी और प्लांट के स्टिग्मा पे भी जा सकता है। सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में डिफरेंशिएशन फॉर्म में आता है। ठीक है, मूविंग अहेड, नाउ पॉलिनेशन हो गया, वी आर डन विद द पॉलिनेशन, यानी कि यहां से एंथर से जो पॉलन ग्रेन था वो स्टिग्मा पे आ गया है। नाउ व्हाट इज द फर्दर प्रोसेस? द फर्दर प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्लियर? फर्टिलाइजेशन होता क्या है? डेफिनेशन इटसेल्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PT1 में या फिर जो आपके UT होते हैं उसमें फाइनल्स में एक बार तो ये पक्का ही आएगा, या तो आइडेंटिफिकेशन के लिए डायग्राम के साथ या तो डेफिनेशन। ठीक है, क्या है फर्टिलाइजेशन? Fertilization is a process of sexual reproduction that takes place after pollination and germination। अब pollination तो हमें पता पड़ गया, pollination is the transfer of pollen, isn't it? Now what is this germination? Have a look here. Let's say this is the, what is this? This whole thing is pistil, ठीक? और ये यहाँ पर क्या है? ये है यहाँ पर pollen grain। तो pollen grain आ गया pollen stigma के ऊपर, तो this is pollination, pollination हो गया।
ठीक, अब हमने क्या पढ़ा था? Pollen grain is covered with some hard outer covering. Now, what happens when pollen grain comes to stigma? And stigma is having some special kind of enzymes or chemicals you can say. वो chemicals जैसे ही उसके कांटेक्ट में ये pollen grains आता है, उसके pollen grains के जो बाहर की outer covering होती है ना, वो डिजोल्व होनी शुरू हो जाती है. ठीक है, एंड व्हेन इट गेट्स डिजोल्व देन दिस अंदर से एक जर्म ट्यूब बननी शुरू होती है. जर्म ट्यूब बनती है एंड जर्म ट्यूब रीचेस टू the ovary and then it goes to ovule. This process is called germination. What is this process called? Germination. ये वो वाला जर्मिनेशन नहीं जो सीड जर्मिनेशन, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. हम जर्म ट्यूब, जो पॉलन ट्यूब बनना शुरू हो गई है, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब बनती है. ठीक है, सो पॉलिनेशन एंड जर्मिनेशन. हैव अ लुक हियर. यहाँ पर एक और पिक्चर है, ये देखो. यहाँ पर क्या हुआ? ये तो पॉलन्स थे, पॉलन्स की आउटर कवरिंग डिसॉल्व हो गई और यहाँ से जर्म ट्यूब बननी शुरू हुई और वो कहाँ तक गई? ओवरी तक. ठीक है, जर्म ट्यूब के अंदर से देन मेल गेमीट्स आर ट्रांसफर्ड. सो pollen grain is not a male gamete. Pollen grain is having male gametes inside which are transferred to the ovule, which is transferred to the ovary through this pollen tube. ठीक है, pollen tube के थ्रू वो ट्रांसफर होते हैं. सो these are the male germ cell और male gametes भी इनको बोलते हैं. So male gametes will reach to the female germ cell. Female germ cells are present inside the ovules. ठीक है, now the fusion of male germ cell and female germ cell will takes place, and with this process is called fertilization. And when these male cell and female are fused, then they form zygote. क्या बोलते हैं उसको? Zygote. Have a look here. The process of fusion of male and female gamete. Female gamete and male gamete कहाँ पे हैं? फिर से बता रही हूँ. Male gamete ये pollen tube से यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं. Female gamete कहाँ होते हैं? ओव्यूल के अंदर. Yes. So the process of fusion of male and female gamete to form zygote is called fertilization. A zygote is formed as the fusion between the male and female gamete. Same thing है. Zygote then develops and turns into embryo. स्टार्टिंग में जैसे ही वो फ्यूजन होता है, जो नया एक मास ऑफ सेल बनता है उसको जाइगोट बोला जाता है. जाइगोट फर्दर कुछ और डिवीजन के बाद एम्ब्रियो में टर्न होता है. ठीक है, क्लियर? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. मूविंग अहेड, हाउ फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड. देखो, फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल एंड गेमीट भी फ्यूज हो गए. अब उसके बाद की प्रोसेस क्या है? ठीक है, उसके बाद की प्रोसेस क्या है? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस द ओवरी यानी कि जो हमने ये पढ़ा था ना यहाँ पर, इस टाइप का स्ट्रक्चर. सो द swollen part, this is the ovary. The ovary of the flower grows and develops into fruits. यानी कि जो हम खाते हैं, यानी सपोज हम एप्पल खा रहे हैं, तो एप्पल का जो एडिबल पार्ट है दैट इज ऑल द ओवरी. क्लियर? The ovules develop and forms the seeds of the fruit. और एप्पल के अंदर जो वो ब्लैक सीड्स होते हैं वो क्या है सारे? How that are formed? They are formed by the ovules. Again, this is one of the MCQ question and very important, that which part of the plant forms the fruit? So ovary. Which part of the plant forms the seeds? Ovules. Yes. Clear? Now, the embryo is enclosed inside the seed. यानी कि जो वो पार्ट जिससे नया प्लांट बनेगा वो कहाँ होता है? वो सीड के अंदर होता है. Embryo is present inside the seed. The remaining part of the flower falls off. यानी कि जो उसमें जिस सेपल थे, पेटल थे, ठीक है, जो फिलामेंट था, वो सारे के सारे बाद में गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. ठीक है, मूविंग अहेड. नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज सीड डिस्पर्सल. सी, वी अंडरस्टूड अबाउट द फ्लावर के मेल एंड फीमेल पार्ट. How from male part the pollens are transferring, that is pollination. Then after pollination we got the fertilization. Fertilization के बाद we got to know how the fruits and seeds are formed. ठीक, अब seeds भी बन गए, तो seeds से नया plant germinate कैसे होता है? How the seed dispersal takes place? Please have a look here, and this is the last and very important topic. What is seed dispersal? The transportation of seed from the parent plant to different places. See, हम पेरेंट प्लांट में अगर फ्रूट्स लगे हैं
और अगर वो कहीं नहीं गए, उसको कोई नहीं लेके गया उनके सीड्स को, तो सारे के सारे सीड्स उसी प्लांट के नीचे गिर जाएंगे, यस और नो? और वही प्लांट के नीचे वो ग्रो होने शुरू हो जाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, पेरेंट प्लांट तो पहले से ही इतना बड़ा है, तो क्या उनको प्रॉपर सनलाइट और न्यूट्रिशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, यस और नो? सो आपस में ही उनका क्या होगा, बहुत सारा कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा। सो इट विल लीड टू अ टफ कॉम्पिटिशन दैट विच प्लांट विल ग्रो फास्टर। गॉट इट? व्हाई दिस सीड डिस्पर्सल इज रिक्वायर्ड? ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल? अब वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें लिखना क्या है। सिग्निफिकेंस में लिखना होता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल। ठीक है, नाउ हैव अ लुक, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल? Seed dispersal allows the growth of same kind of plant in different habitat. यानी कि एक टाइप का प्लांट अलग अलग जाके दूर दूर जाके वो ग्रो हो सकता है, एक ही जगह पे कन्फाइन नहीं होता। देखो मैंगो है, मैंगो क्या एक ही जगह पे ग्रो होता है पूरी कंट्री में? नहीं, वो अलग अलग जगह पे भी ग्रो हो सकता है ना? तो दैट्स व्हाई इट कैन ग्रो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट। दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस। सेकेंड सिग्निफिकेंस इज this is helpful because it minimizes the competition for food, sunlight, water and mineral among the plant of same kind. यानी कि अपने ही टाइप के प्लांट के बीच में जो कंपटीशन होगा वो इसके वजह से कम हो जाता है। अगर सीड अपने पेरेंट प्लांट से दूर दूर जाके गिरेंगे तो उनका बेटर चांस है कि उनको अच्छा न्यूट्रिशन और सर्वाइवल और सनलाइट मिलेगा। करेक्ट? सो दीज आर द टू सिग्निफिकेंस एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क देम। अगर आप एनसीईआरटी अभी लेके बैठे हो या क्लास नोट्स लेके बैठे हो, पक्का उसमें लिखा होगा मार्क देम, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर? नाउ वी आर मूविंग अहेड एंड वी आर लुकिंग फॉर द वेज एंड मीन्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। किस तरीके से सीड डिस्पर्सल होता है? हैव अ लुक। What are the distribution factors are written here. So first is wind, water, animal and fruit burst. These are the four ways by which seed dispersal takes place. The first thing is wind. And now wind से कैसा seed disperse होगा? Wind से वो seed disperse हो सकता है जो बहुत हल्का हो, which is very light. अब मैंगो का सीड देखा है आपने, क्या वो विंड से डिस्पर्स हो सकता है? नो, वी कैन नॉट, विंड कैन नॉट ब्लो इट अवे। ठीक है, तो हमें ऐसे सीड के बारे में देखना है जो बहुत लाइट होते हैं। कैसे, कौन से एग्जाम्पल्स हैं? ड्रमस्टिक, मैपल, ठीक है, ग्रास, आक, सनफ्लावर। लुक एट देयर पिक्चर्स है। ये देखो, ये वाला ये ड्रमस्टिक है, ये वाला मैपल है, ठीक है, एंड दिस इज सनफ्लावर एंड दिस इज आक। ये क्या है, इनमें ये छोटे छोटे विंग्स टाइप के ये विंग्स बने हुए हैं ना, ये इजी हो जाता है विंड को इनको ब्लो करने के लिए। ठीक है, दिस हेयरी स्ट्रक्चर अगेन, this help the wind to blow them away. Got it? So these are the examples which where the seed dispersal takes place through the winds. Clear? Moving ahead, next is water. अब water में कौन सी चीज ट्रैवल करके जा सकती है जो फ्लोट कर सके, है ना? अब ऐसा कौन सा सीड है जो आराम से फ्लोट कर सकता है? दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल इज कोकोनट। कोकोनट के बाहर का जो हस्क होता है ना, वो उसको लाइटर कर देता है ट्रैवल करने के लिए, फ्लोट करने के लिए। सो कोकोनट दैट इज हैविंग स्पॉन्जी सीड एंड फाइबरस कोटिंग सो दैट इट फ्लोट इन वाटर। कोकोनट जो है वो वाटर के थ्रू उसका सीड डिस्पर्सल होता है। ये देखो, यहाँ पे कोकोनट कहीं से ये ट्रैवल करके आया होगा और यहाँ पे शी शोरमा आके वहां पे लग गया और यहीं से नया प्लांट शुरू हो गया, है ना? आपने देखा होगा जितने भी बीचेस होते हैं उसके पास कोकोनट के प्लांट्स बहुत सारे होते हैं। वन ऑफ द रीजन। करेक्ट? मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज एनिमल्स। एनिमल्स की बॉडी, जब एनिमल्स जब किसी भी प्लांट के आसपास जाके घूमते हैं, दे ग्रेज, तो होता क्या, उनकी बॉडी पे कई सारे सीड्स जाके स्टिक हो जाते हैं। अब कैसे सीड्स वहां पे स्टिक होंगे? ऐसे होंगे जो जिनमें थोड़े बहुत कांटे हों, यानी कि वो स्पाइनी हों, isn't it? तो स्पाइनी सीड्स लाइक xanthium and यूरेना gets attached to the body of the animals. ये देखो, ये xanthium है, कैसा दिख रहा है ना, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कांटे हैं उसमें। तो ये जो है वो एनिमल की बॉडी में जाके लग जाता है और जहां पे एनिमल की बॉडी से वो गिरा वहीं से वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है, जितनी दूर एनिमल जाएगा। ठीक? एंड द लास्ट वन इज फ्रूट बर्स्ट। फ्रूट बर्स्ट इज कैस्टर और बालासम इज द एग्जाम्पल। कैस्टर एंड बालासम, इसमें होता क्या है, जब फ्रूट पूरी तरह से राइप हो जाता है तो वो खुद ही एकदम से ऐसे ब्लास्ट हो जाता है। एंड व्हेन इट गेट ब्लास्ट, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फ्रूट ब्लास्ट हुआ, तो फ्रूट ब्लास्ट से जितने भी उसके सीड्स है वो एकदम से बहुत दूर जाके गिरते हैं। ठीक? थोड़े बहुत अगर उस टाइम पे विंड ज्यादा चल रही होगी तो और ज्यादा दूर जाके गिरेंगे।
So this is one of the method of seed dispersal. So this was all about this chapter. I hope you were able to understand this chapter very clearly. But still, if you're having any doubt, you can always comment. I will try to revert back there only. And after this, I will try to get all the further chapters of second term as soon as possible. So stay tuned and spread this video among your friends so that it can be helpful for others also. Got it? Chalo, bye bye.